sent the new one. क्या बात है, सब लोग गए क्या MPPSC सब? आप लोगों को नोट्स मिला? इंडिया, रशिया, इंडिया, चाइना, हैव यू गॉन थ्रू दैट? कितने लोग एक्चुअली गॉन थ्रू इट? आई थिंक चाइना का तो बहुत एक्सटेंसिव बनाया मैंने, 11 पेजेस का, पर देखा भी है? नहीं देखा ना अभी? You had yesterday's time, why didn't you look at it? देख लेते ना. Is it not working? Okay. Start writing with what we have to do, India and Saudi Arabia. Like what we have done in the previous class regarding India and Saudi Arabia. Who will tell me? बताइए. बताइए. What we have done in India, Saudi Arabia so far? Cultural exchange तक लिखा था. Can somebody give me a brief? Okay. उसके बाद कुछ नहीं किया हम लोगों ने. सऊदी अरेबिया का इंट्रोडक्शन भी किया है. ओके. So for this I'll be not giving the notes. You can sorry, I'll not giving the printed notes. You can just go through what I'll make you write. ठीक है. आपने मार्क किया जो मैंने आपको बोला था that you have to mark all that places. I told you about IMAC. I told you about Persian Gulf, Red Sea. उस दिन मैंने मार्किंग भी कराई थी, तो आपने घर पे जाके की वो मार्किंग? ठीक है. ओके, बताइए आप मुझे, where are these places? Tell me, where are these places? Persian Gulf, Red Sea, Mediterranean Sea. Why it is important? Strategically क्यों important है ये चीजें? हाँ, ट्रेड रूट्स, सिर्फ ट्रेड रूट्स और what are the other reasons? सिर्फ ट्रेड रूट्स थोड़ी ना, और भी तो चीजें हैं. मिनरल्स. नेक्स्ट. बट नेक्स्ट सिर्फ इतनी सारी चीज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग अबाउट ऑल दैट? नहीं, घर पे जाके किसी ने किया है प्रैक्टिस? अभी कहाँ बोला? अभी बोला. अच्छा अच्छा, जोर से नहीं बोला. ठीक है. ठीक है, आप लिखिए. मिडिल ईस्ट. मिडिल ईस्ट. For the people who have just come to my class directly and they have not taken previous classes, this is the part that I'm talking about. This is the Middle East. ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस हो गया है अब, राइट, जियोपॉलिटिकली. और जियोपॉलिटिकली हम अगर बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग प्लेस हो गया, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों ऐसा बोला जा रहा है. ठीक है. व्हेन आई विल मेक यू राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट इन डिटेल. उसको डिटेल में समझेंगे आप लोग, राइट. अब पहले लिखिए, फिर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स. राइट डाउन. द मिडिल ईस्ट हैज ऑलवेज रिमेन a significant geopolitical. Middle East has always remained. Middle East has
always remained significant geopolitical, comma, geostrategic. I use two words, geopolitical और दूसरा वर्ड क्या यूज किया मैंने, एनजीओ स्ट्रैटेजी। पर कौन आ गया था यहाँ पे? आई इन्फॉर्म्ड यू ऑलरेडी, you came yesterday, so why you are connected on the group? I told you already. आप लोगों को कनेक्टेड हैं, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू, यू वुड हैव गिवन द मैसेजेस। व्हाई आई थॉट कि एक स्टूडेंट को बता दूंगी मैं या फिर इतने सारे लोगों को बता दूंगी, दे विल कम्युनिकेट टू ईच अदर, एंड देयर इज वन गर्ल आल्सो हु केम। मुझे यही लगा कि आई हैव कंफर्म टू क्लास पहले से, मतलब एडमिन से पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। सोनू, व्हाई डिडंट यू टेल देम? आपको तो पता था, क्यों नहीं पता? अच्छा, ओके ओके, समझ गई, ठीक है। ओके, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, geopolitical and geostrategic hotspot in world politics. Hotspot in world politics. In world politics. ऑनलाइन क्यों गए आप लोग? आपको पता तो था नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, लिखिए। In the world politics, for write down geostrategic hotspot in the world politics. Full stop. For the past 3 centuries, comma, the region has remained the center of all important. For past 3 centuries, comma, the region has remained the center of all important confrontation and battleground, all important confrontations and battleground for superpowers, because of various aspects. धीरे बोलूँ आप, ठीक है। Region has remained the center of all important concentrations and battlegrounds for superpowers because of various aspects. Full stop. It equally remained a critically strategic region for India too, because it has significant geopolitical, for India because it has कहाँ से मिस हुआ? It has significant geopolitical, geoeconomic implications. लिख दिया ये? अच्छा, लिखिए। अच्छा, because के बाद, ठीक है। Because it has significant geopolitical and geoeconomic implications. Historically, India shares with the region deep civilization. India shares with the region deep civilizational and cultural linkages and cultural linkages
and historical ties. And historical ties. Both India and Middle East share a common legacy. Both India and Middle East share a common legacy and a kind of similar battle from for freedom from colonial masters. So can you see what is the background? That they also share some kind of cultural ties, because people used, I told you about Al Buruni, who used to visit from that place till this place, till here, right? And when they used to visit to this place, what they used to get, there are a lot of cultural exchanges, there are a lot of, because can we see the architect of India? Somewhere with monuments of India, जो कि inspired है कहाँ से? Your those cultures, right? So that means exchanges have happened in the past and people have visited from there. Trade has happened from that place. So geopolitically, this place has remained a very important, significant place from a very, very long time. ठीक है, लिखिए अब. हाँ, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा. हिस्ट्री नहीं पढ़ा आपने? और जब आपने खुद बोला कि उसमें मुगल एम्पायर की बात कर रहे हो, तो मुगल एम्पायर ही तो है ना. जब आपको नहीं, जब आपको चीजें पता है ऑलरेडी. लिखिए. India shares deep civilizational and cultural linkages. And cultural linkages. कॉमा, हिस्टोरिकल टाइज लिखा आपने. और प्लीज अब जल्दी जल्दी आप लिखिए, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये पूरा जो क्लास है दे राइट सो वेल. मैं ऊपर देखती हूँ एवरीबडी हैज रिटन ऑलरेडी, बट दे आपको एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना लिखने का. मैं ऑब्वियसली आई कीप अ पेस विद यू, बट आई कैन नॉट पैम्पर वन चाइल्ड ऑल द टाइम. राइट डाउन. बोथ इंडिया एंड मिडिल ईस्ट शेयर. हाँ, ये पॉइंट हो गया. ये प्रॉब्लम है कि आप जब ऐसे पूछते हैं, दूसरे मैं बड़ा बता कुछ और रही थी, मैं चली गई. इससे बाकी स्टूडेंट्स का कितना नुकसान है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी. और मैंने बहुत बार ये चीज बोला है. आपका इनका नुकसान है, वो पहली बार आ रहे हैं क्लास में, वो क्या समझेंगे फिर उस चीज से. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आप मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है, व्हाट शी विल अंडरस्टैंड. मुझे उनका भी ध्यान रखना है. राइट डाउन.
बोथ इंडिया एंड मिडिल ईस्ट शेयर अ कॉमन colonial, जी पावर पॉइंट हो गया या नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। हाँ, colonial masters का हो गया, ठीक है। Now write down following independence, comma, the foreign policy principles. Following independence, comma, the foreign policy principles such as non-alignment policy, comma, punchil, comma, anti-colonialism, comma, anti-racialism, anti-colonialism. I'm repeating the point, do not worry. Following independence, comma, following independence, comma, the foreign policy principles, the foreign policy principles such as non-alignment policy, comma, punchil. Punchil का spelling everybody knows, PANCHSHEEL. Punchil, comma, anti-colonialism, anti-colonialism, comma, anti-racialism, anti-racialism, comma, anti-racialism का spelling everybody can write, किसी को problem? ठीक है, anti-imperialism, etc. garnered considerable support, garnered, 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 considerable support, and strength from the region, owing to the ongoing Cold War between two superpowers, that are USA and USSR. USA and USSR. अब देखिए, हिस्टोरिकल, जब भी आपको एक आंसर अपना स्टार्ट करेंगे तो यू विल गो बैक टू द हिस्ट्री, ठीक है। आप लोगों के लिए, न्यू इन द क्लास, स्टूडेंट्स हु आर न्यू, आप लोगों के लिए, बिकॉज देखिए, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कोल्ड वॉर? यू ऑल्सो, व्हाट इज योर नेम? आकांक्षा। फॉर यू, व्हाट इज योर नेम? सक्षम, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर टू सुपर पास, ठीक है। आप लोगों को सुपर पास समझ में आता है क्या थे, राइट? At what time I'm talking about, what timelines I'm talking about here? कोल्ड वॉर 1991 से पहले, यस, कम 1991 से पहले, एंड 1991 से पहले what happened before 1991? There were two superpowers. We talk about the Russia and we talk about USSR and USA. उसके बाद 1991 में जब disintegration हुआ USSR का, then we had only one, which we call it as USA. After 2007 we have multipolar world. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंड व्हाई दिस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, हिस्टोरिकल टाइम्स व्हिच हैपन। अभी जब लोग हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ लिया है उन लोगों को पता है कि हिस्ट्री की अगर मैं बात कर रही हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। फॉर द पीपल, जिन लोगों का क्लास अभी नया है, फॉर देम दे विल अंडरस्टैंड कि हिस्टोरिकली आई कैन जस्ट गिव यू सुपरफिशियल आइडिया दैट व्हाट हैज कम फ्रॉम देयर, क्या क्या वहां से आपने उठाया। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो उठाया, फॉर एग्जाम्पल आपका आर्किटेक्ट, आपने वहां से इंस्पिरेशन है, आपका राइटिंग स्टाइल, पर्शिया, राइट, ये सब आपका इंस्पिरेशन है। अब किस वे में आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो द क्लोथ्स दैट पीपल आर वियरिंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रेड विच हैज हैपेंड। सो जब ट्रेड हुआ वो कल्चरल टाइज है। उसके अलावा व्हाट एल्स, और किस पे जाएंगे हम? हाँ, वेरी गुड, विच मूवमेंट? एक्सीलेंट, सूफी मूवमेंट। जो सूफी मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, ठीक है। और जब सूफी मूवमेंट वहां से आपने लिया, अभी भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं बहुत लोग सूफी, राइट? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज? ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन हाईलाइट इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्ट्री से हम प्रेजेंट के अंदर आएंगे कि हिस्ट्री में भी हम लोग कनेक्टेड थे, किस तरह से कनेक्टेड थे मिडिल ईस्ट एंड दिस पार्ट, एंड नाउ वी विल कम डायरेक्टली हियर, ठीक है। दिस एरिया फॉर द पीपल हु हैव नॉट कम टू द क्लास day before yesterday, so this is the part which is very very important. Can you see how near it is to India?
यहाँ से क्या जाता था from Kerala? You used to send what? Lot of spices from here to here. For the students especially who are new, they have to tell me are they understanding or not, right? Pepper, excellent. Pepper was correct. Pepper is one. ठीक है? There are new students also. I guess some. I think Sakshi is new in this. Okay. Pepper is one. What else? What else? Huh? Yes, cotton. Very good. Or hmm? Wheat. Okay. But उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं. Excellent. Horses import होते थे. तो इस तरह से आपको समझना है कि जब हम सिविलाइजेशनल टाइज बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि ये हमारा कनेक्शन था, तो किस पर्पज से था? तो व्हेन वी यू राइट द वर्ड्स, आप वर्ड तो आप लिख लेंगे, बट द पॉइंट इज किस लेवल तक हमारा कनेक्शन था वो नहीं समझ पाते हैं काफी लोग. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डूइंग आईआर. तो जब यू विल अंडरस्टैंड आईआर वेरी वेल, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप ये वर्ड्स जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजिक, ये सब आप लिखने लगेंगे. ठीक है, बट फॉर मी आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एक्सप्लेन यू एट द इनिशियल स्टेज कि हिस्टोरिकल टाइज का मतलब क्या है. देव, सक्षम, आर यू गेटिंग? आकांक्षा, आप लोग ठीक है? ओके, ऑल राइट. लिखिए अब. राइट डाउन. इंडिया एंड मिडिल ईस्टर्न स्टेट, India and Middle Eastern states share a similar history and similar colonial past. Similar history and similar colonial past. Full stop. The British ruled both the parts of the continent. The British ruled both the parts of the continent in the view of the resources. Underline the word resources. Resources बहुत important है. They possessed for maintaining its they possess for maintaining its sphere of influence. They possess for maintaining its sphere of influence. Full stop. This is evident from the fact. This is evident. Saksham, what happened? Why are you not writing? नहीं, लिखो लिखो, कोई बात नहीं. जहाँ से if you have left something, कोई बात नहीं, लिखिए. कोई बात नहीं. Start writing. This is, I'll slow down, don't worry. This is evident. This is evident from the fact that Mahatma Gandhi took over the leadership. Mahatma Gandhi took over the leadership of Khilafat, took over the leadership of Khilafat movement to maintain the political stability in region and curb political stability in region. Again, I am repeating, this is evident from the fact that Mahatma Gandhi took over the leadership of Khilafat movement to maintain the political stability in region and curb
the British interference in the religion of the region. In the religion of the region. Right? लिखिए इंडिया स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट. नेक्स्ट हेडिंग डालिए. इंडिया स्ट्रेटेजिक STRATEGIC strategic involvement in the region post 1990 period. 1990 period. Now things changed after 1990 period. What happened after 1990 period? क्योंकि वर्ल्ड वॉर पॉलिटिक्स स्टार्ट होने लगा. Sometimes they favored USA, sometimes they were not favoring. So this is what happened. आपको पता है जब ऑयल का जो सिनेरियो हुआ था, then मैंने आपको पहले भी बताया था कि USA was highly dependent on oil imports from Middle East. अब पहले तक जब तक ऑयल आया था तब तक गुड फ्रेंड्स. Then they started showing their monopoly, started increasing the prices of the oil. USA had problem. उससे पहले तो कोई problem नहीं थी. But then they started showing their true colors, Middle East. And then when they started showing their true colors, what happened then? What USA said? What was that? OPEC. किसने पढ़ा है? Oil crisis. Have you heard about that? Cartel, etc. ठीक है. Separately हम लोग करेंगे. अगर नहीं किया आपने तो ठीक है. काफी लोगों को नहीं पता उसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सिंपली वे में समझेंगे दैट दे यूज्ड टू टेक ऑयल फ्रॉम हियर एंड देन वी इंक्रीज द प्राइसेस एंड दे हैड अ प्रॉब्लम विद देम. उसके बाद उससे पहले तो यूएसए एंड दिस मिडिल ईस्ट, नॉट होल मिडिल ईस्ट, राइट, बट सऊदी अरेबिया पर्टिकुलरली, दीज वर like good, having a good relation. And uske baad they had a problem, reason being because they were not getting succumbed to the threats of the USA. And then after that USA started exploring the oil अपनी territory के ऊपर. उससे पहले they were high 79%, in fact 80% तक जो imports थे oil के वो कहाँ से आते थे? Middle East से आते थे. Are you getting my point? आप लोगों को ठीक है. Then the things changed. हाँ, then things changed and then वो dwindle करते रहे. किसके बीच में? USSR and USA. ठीक है. अब लिखिए. There are two major stages. There are two major stages of Indian foreign policy. There are two major stages of Indian foreign policy engagement in West Asia. In West Asia, pre and post 1991. ठीक है. 1991 से पहले कैसा था? लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, प्रायर टू 1991, और अंडरलाइन करेंगे प्रायर टू 1991. प्रायर टू 1990 मतलब 1991 से पहले. ठीक है एवरीवन. India's engagement with the region was one of political distance. One of political distance due to the dynamics of Cold War politics. Due to the dynamics of Cold War politics. ठीक है. क्यों हुआ? क्यों उनको प्रॉब्लम हुई? कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा इंडिया ने. They started taking hydrocarbons. कहाँ से?
रशिया से। यही प्रॉब्लम यूएसए को था, बिकॉज आई डिड आई से यू सऊदी अरेबिया एंड यूएसए वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और जब यूएसए एंड सऊदी अरेबिया आर गुड फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड देन? दे हैड अ प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया वाज टेकिंग हाइड्रोकार्बन फ्रॉम रशिया। समझ में आ रहा है सबको ये बात? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग यहाँ पे यू टू आर फ्रेंड्स, ठीक है, अब ज्यादा बात करने लगेंगे किसी और से तो उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, होता है ये नॉर्मली। चेयर अप गाइस। ऐसे क्यों बैठे हो सिर्फ, बहुत ज्यादा लेजी? हाँ, होता है ऐसा। ठीक है, गौतम, पर्सनल नहीं जाना है। हाँ, ठीक है, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि जनरली ऐसा होता है। ठीक है, सेम केस यहाँ पे, दे ऑल्सो गेट टू मच annoyed for that. Now write down. This was due to the fact. This was due to the fact. This was due to the fact. This was due to the fact that they were purchasing majority of its, because they were purchasing majority of its hydrocarbon needs from, this is because they were purchasing hydrocarbon needs from Russia and had nothing substantial to offer Akanshu, just make the notes आप register में बनाइए, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, write down. And they had nothing to offer to the Middle East. अब what happened then? जब सऊदी अरेबिया से they started taking lot of oil, जब सऊदी अरेबिया का and this area got opened for India, then they started having, क्योंकि इनका इंटरेस्ट, I always talk about international relations में vested interest, जब तक आपका इंटरेस्ट किसी के साथ है तब तक आप फ्रेंड हैं, उसके बाद over, right? Then when there is no vested interest, then I don't know you, you don't know me. ठीक है, so similarly happened with them. जब सऊदी अरेबिया का जब it is proliferated their oil exploration, they got new this oil fields, we call them oil fields. Persian Gulf में आपके बहुत ज्यादा हैं. There was a question also is this time in UPPSC also, that they were asking about the oil fields which are present in the Middle East. और जब oil exploration होने लगा Middle East के पास, then what happened? इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम देम। अब जब वहां से आप बाई करने लगे तो क्या हुआ? देन दे हैड अ गुड रिलेशंस। अब रिलेशंस बनने स्टार्ट हुए तो उनके, क्योंकि उनको क्या लगा कि ये भी एक बहुत अच्छा हमारा एक जोन हो सकता है, एक एरिया हो सकता है जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, वी कैन सेंड व्हाट, ऑयल, और उनको क्या मिल रहा है? मनी। ठीक है, कितने लोग समझ रहे हैं? इंडिया अभी भी लेते हैं सऊदी अरेबिया से कुछ? क्या ऑयल लेता है, पर डिपेंडेंसी इज लेस, ज्यादातर रशिया से। हु एल्स? आप लोगों को ये बात पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट मिडिल ईस्ट? एनीथिंग एल्स? हैव यू गॉट फेमिलियराइज्ड विद दिस प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, वेपन, राइट, बट करेक्ट। नहीं, मुझे लगा सऊदी से कर, नहीं मुझे, हाँ नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू आल्सो टेल मी दैट हैव यू गॉट फेमिलियराइज्ड विद दिस प्लेस? कितने फेमिलियर हुए आप लोग? 5%? क्यों? वाई 5%? मैप्स तो नहीं खोले होंगे? क्या समझ नहीं आया मैपिंग में? क्या मैप्स लेकर आए हो आज? क्लास में कराऊंगी एक्टिविटी अभी हाफ एन आवर में।
एक एक के डेस्क पे आके ये पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, एंड आई एम नॉट किडिंग, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन में कराया है ये, मैंने कराया है ज्योग्राफी ऑप्शन में किया। मैप है, निकालो। ऐसे कैसे हो गया, फेमिलाइज नहीं हुए इस प्लेस से? हाँ मुझे दे दो। आज आप पूरा मैप लर्न करके जाओगे, दैट इज माय गारंटी। क्लास में बना पाओगे पूरा, मिडिल ईस्ट बना लोगे आप, क्योंकि कल से आई डोंट वांट टू लिसन दिस कि मैम हम फेमिलियर नहीं हुए इस पार्ट से। ठीक है, लास्ट के हाफ है ना, कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 3 4 5 6 7 15। ठीक है, क्या समझ नहीं आया ध्रुव इसमें वैसे, ताकि मैं उस पर हाईलाइट करूं? ठीक है, आई कम टू ईच एंड एवरी वेरी प्लेस एंड आई एक्सप्लेन यू दैट। ठीक है, पहले लिख लेते हैं थोड़ा एंड देन आई डू दिस, डोंट वरी, राइट डाउन। बिकॉज नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। ठीक है, समझना आपको क्लास में समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो आपको अगर समझ में आ गया मेरा पढ़ाया हुआ, देन यू विल अंडरस्टैंड द नोट्स ऑटोमेटिकली। लिखिए, write down few points and then we'll start that. Write down. Saudi Arabia not only compensated for Saudi Arabia not only compensated for the former Soviets, the former Soviet Union's loss of hydrocarbon, Saudi Arabia not only compensated for the former Soviet Union's loss of, again repeating, Saudi Arabia not only compensated for the former Soviet Union's loss of hydrocarbon product supply, comma, but also fulfilled the growing demand in the Indian market. Full stop. Indeed, Saudi Arabia steadily emerged. Indeed, Saudi Arabia steadily emerged as India's leading crude oil supplier, 20% when it was narrowly surpassed by Nigeria. नाइजीरिया कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, write down. Next point, Iran also played a crucial role. Iran also played a crucial role in India's strategic thinking. In India's strategic thinking for variety of reasons. For variety of reasons. For variety of reasons. Full stop. First, Iran is a
big crude oil supplier. Iran is a big crude oil supplier, comma, accounting for accounting for 6% of India's oil import. Next point. Iran borders the Strait of Hormuz. Iran borders the Strait of Hormuz, comma, which transports which transports one fifth of the world's oil. थर्ड पॉइंट लिखेंगे with the eventual construction of Shahabad, with the inflection with the, what did I say, eventual construction of Shahabad port, as well as international north-south transport corridor, comma, Iran is poised to become India's gateway. This is the spelling. It became India's gateway to Central Asia, comma, Europe and Russia. International North-South Transport Corridor. ठीक है? Okay. Now, first of all, you have to understand, बिल्कुल बेसिक पे चले जाइए. ये बताइए मिडिल ईस्ट में कंट्रीज कौन कौन सी है. पहले तो ये बताइए आप मुझे. और और करेक्ट. पहले वो लिखिए मिडिल ईस्ट में कंट्रीज कौन कौन सी. राइट डाउन साइड में बॉक्स बना के लिखिए. लेबनान, LEBANON, लेबनान, कॉमा, सीरिया, कॉमा, इजराइल, कॉमा, जॉर्डन, JORDAN, जॉर्डन, लेबनान, कॉमा, सीरिया, कॉमा, इजराइल, कॉमा, जॉर्डन, कॉमा, सऊदी अरेबिया, कॉमा, येमेन, YEMEN, येमेन, कॉमा, ओमान, कॉमा, बहरीन, BAHRAIN, कॉमा, कतर, QATAR, कॉमा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कॉमा, कुवैत, KUWAIT, कॉमा, इराक, IRAQ एंड ईरान. ठीक है, क्लियर है सबको. देखिए टर्की आपका लाई करता है ईस्ट एंड वेस्ट. इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द
यूरोप. Why? Because it's lying at the middle of it. ठीक है. Sometimes they do. मतलब if you consider it, yes, Palestine भी correct. Yes. ठीक है. पहले आप ये लर्न करिए कि क्या. अब जब आपको पता है कि कौन से कहाँ पर है ये एरियाज, गूगल पे निकालिए पहले. मिडिल ईस्ट को गूगल पे देखिए एक बार, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार दिखाया था यहाँ पे. दिस इज द एरिया. नहीं लिखवाया क्या? हाँ हाँ, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम. नहीं लिखा आपने उसके अंदर? हाँ, इराक लिखा है, लिख लो. मैं मिस कर दिया फिर. ये दिख रहा है आपको दिस एरिया, पर ये समझ नहीं आ रहा है आपको, राइट? कितने लोगों को एरिया समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा है ये एरिया. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आई डू. व्हाट इज द पॉइंट, कैन यू रिपीट? देयर वाज अ लॉस इन कनेक्शन. दिव्यांका. Okay, which point you're referring to, Divyanka? See. Ma'am, after both India and Middle East share a common legacy and a kind of similar freedom from colonization. After that, you gave a point, but I had the connection loss, so I Okay. was not able to write that point. So can you write it exactly which point you're talking about? Yes, ma'am, I'll write it. हाँ, write it. ठीक है. This is the right map. This one. For the online students, if you have this thing for like how I'll be able to cope with, because I'm doing this mapping work and I want to do it very religiously in the class. Reason being क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा otherwise. For the online students, you don't have to get into FOMO. I will do online class, extra class with you to make you understand this. ठीक है. अगर online students को समझ में आ रहा है, that's well enough. अगर नहीं आ रहा है, in that case, so you can write down if anybody has a problem in understanding the map. ठीक है. This is for everyone and then I'll explain you individually. This is the Middle East, क्योंकि वहां पे नहीं समझ आ रहा है. This is Middle East का मतलब कहाँ है? कौन कौन सी मैंने कंट्रीज लिखवाई हैं आपको? What all countries I have made you write? लिख छोड़ दो उसको. हाँ, या मैप खोलना. बताइए. हाँ, बड़े वाले बताइए. हाँ, लेबनान और बिल्कुल. पकड़ो इसको, जस्ट होल्ड इट, क्योंकि ग्लोब पे भी समझ नहीं आएगा. दिस इज, अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे, लिसन एवरीवन, अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो दिस इज सऊदी अरेबिया, दिस इज योर मिडिल ईस्ट. अब किस किस को मैपिंग समझ में आती है? दिस इज रशिया, राइट? दिस इज इंडिया, दिस इज व्हाट? अफ्रीका, दिस इज यूएसए. नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन. समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है? ये उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल भी मैपिंग नहीं करी है. ठीक है. सो समझिए बात को. सो अब आप देख सकते हैं यहाँ से इंडिया के पास कितना पास है ये, दिस होल एरिया कितना पास है? हाँ, कितना पास है ये? 5-6 किलोमीटर. क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये एरिया
मतलब फ्लाइट ड्यूरेशन बता दो कितना, फ्लाइट ड्यूरेशन के क्या टाइम है? हाँ 2.5 आवर्स, ठीक है 3 आवर्स। सो दिस इज व्हाट। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे दिस इज योर अरेबियन सी है, यहाँ पे आप प्लीज यहाँ पे देखिए, नहीं आएगा वरना समझ, ये अरेबियन सी है, यहाँ से आप जा रहे हो, दिस इज योर, पहले क्या पड़ेगा? ओमान, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? यमन, व्हाट इज दिस? उस दिन मैंने क्या बताया था, दिस इज अ पेनिनसुला, कैन यू सी दिस, दिस इज अ पेनिनसुला। इस पेनिनसुला का सबसे बड़ा क्या है, कौन सा सबसे बड़ी कंट्री है? सऊदी अरेबिया। हाउ मच एरिया इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग? 80%, excellent, 80% of area being constituted by Saudi Arabia. इसके ऊपर दिस इज योर, क्वेश्चन मत बोलो, ईरान, ईरान। एंड देन यहाँ पे क्या है आपका? सीरिया लिखवाया था, सीरिया के छोटे से ऊपर है लेबनान, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, मैप में दिखेगा। और क्या क्या कंट्रीज है? जॉर्डन है, ठीक है, जॉर्डन कहाँ पर है? यहाँ पर है, इजराइल के बिल्कुल साइड में। हाँ ठीक है, सो दीज आर द कंट्रीज। अब कंट्रीज का नेम बोलेंगे, आई विल मार्क दैट। बताइए कौन कौन सी कंट्रीज है? सीरिया, सीरिया, कैन यू सी सीरिया? कितने लोग नहीं देख, अगर वो ही करना होता तो मैं अच्छा है आपके पास, आप क्या कर रहे फोन में? अच्छा, लेकिन वो समझ नहीं आएगा ना फिर। अरे मतलब आई वांट टू शो दिस मैप, ये वाला एरिया बताना चाहती हूँ कि पूरे ग्लोब में कहाँ है ये दिस मिडिल ईस्ट, ठीक है, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ दैट दिस इज हियर। इंडिया के रेफरेंस से देखेंगे आप, इंडिया में कहाँ है, इतना दूर है यहाँ से, ठीक है, सब चीजें समझ में आएंगी। अब कितने लोगों को हल्का सा समझ आया कि मिडिल ईस्ट कहाँ है, बस इतना समझ आ गया तो भी सक्सेसफुल है। पक्का? पक्का? पूरा तो नहीं आया है, छूट नहीं। अब इसमें पॉलिटिकल मैप खोलो, इसको फोल्ड कर लो, गए। अब इसमें पॉलिटिकल मैप खोलो सऊदी का, you have to make literally Saudi Arabia and everything का, every country, यही है, क्लियर है? ठीक है, इसको बंद करो, थ्रू भी रेफर करो, ये वाला मैप खोलो आप, दिस वन, ठीक है, समझ में आ रहा है? सऊदी अरेबिया, दिस इज ओमान, दिस इज इराक, सीरिया, टर्की, यहाँ से आप यूरोप जाएंगे, आई कम टू एवरीवन, ठीक है, टर्की से कहाँ जाएंगे आप? यहाँ पे ऊपर क्या है? यूरोपियन कंट्री, ठीक है, और स्टेट ऑफ हॉर्मस कहाँ है? गल्फ, पर्शियन गल्फ, हियर, गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज योर, यहाँ से क्या जाता है? यहाँ से आपका, ये आपका, इसके नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा? अफ्रीका, यहाँ से आपका शिप्स वगैरह जाता है, बस इतना ही समझना है आपको। आपको समझ में आया? आप तीनों के लिए, दिस इज योर सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये आपका यमन, ओमान, यहाँ पे आपका इंडिया है, ठीक है, समझ में आ रहे हो ना? अब इंडिया से कहाँ से यू आर गोइंग हियर, दिस इज योर पर्शियन गल्फ, दिस इज योर गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। अब उस दिन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द एडन आल्सो, ठीक है, देन यू विल हैव गल्फ ऑफ एडन हियर, गल्फ ऑफ एडन नीचे है, पर्शियन गल्फ आपका ऊपर है, क्योंकि यू हैव डू दिस थिंग, राइट। अब अरेबियन सी से फिर यहाँ पे आप जाएंगे, क्या आ जाएगा? रेड सी स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका अरेबियन सी है, यहाँ आएंगे तो रेड सी, नीचे से आपके यहाँ से रेड सी स्टार्ट होगा। सऊदी अरेबिया का एरिया देख लो आप कितना ज्यादा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, यमन, ओमान, इसके ऊपर यहाँ पे यू हैव यूएई, राइट, एंड देन यू हैव व्हाट इज दिस, कतर, दिस इज कुवैत, यहाँ पे छोटा सा बहरीन है, दिख रहा है आपको, बहुत छोटा सा है, वेरी स्मॉल, दिस इज इराक, एंड देन हियर यू हैव, दिस इज ईरान। अब ऊपर जाएंगे आप, दिस इज टर्की, टर्की हाफ में डिवाइडेड है, आधा, इट्स somebody sometimes they consider it
It's more of a part of a European, because you consider it what? Yes, European side. Okay, this is your Syria. ठीक है, अभी जहाँ पे आपके lot of turmoil has happened, ये आपका इराक. Then what else? हाँ, Jordan very important. हाँ, एक सेकेंड. ठीक है, ठीक है. अब सुनिए. ठीक है, टर्की. अब ये वाला एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. इजराइल इज इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स गोइंग ऑन, राइट? विच एरिया इट इज? हाँ, लॉ पेन तो थोड़ा सा ये वाला. ठीक है, ये आपका इजराइल एरिया. अब आप वो भी तो रहा है, वो भी तो यूरोपियन नेशंस के गलती की वजह से हुआ था ना. कुछ क्या हुआ था? ट्रीटी साइन किया था, वो ट्रीटी को फॉलो अप नहीं किया. हाँ, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटीज व्हिच हैव, हाँ, राइट, राइट. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे देयर देयर व्हाट इज द पॉइंट हियर? व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग. यस, यहीं पे आपका पैलेस्टीनियन, मतलब इसी इन्हीं के अंदर या टेरिटरीज जिनका वो जो वॉर, व्हाटएवर द टर्मोइल इज हैपनिंग इन दैट, तो ये वो है. अब यहाँ पे देखेंगे, दिस इज सिनाई पेनिनसुला. यहीं पर है क्या? देखिए, गल्फ ऑफ एडन. फिर यहाँ से आपका पूरा रेड सी है. देखो, ये रेड सी और फिर मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाता है. और ये क्या है? आपका इजिप्ट से कनेक्ट हो रहा है. ये इजिप्ट से कनेक्ट हो गया. फिर नीचे से यहाँ से इजिप्ट, अफ्रीका विल स्टार्ट. नीचे यहाँ पे क्या है? अफ्रीका विल स्टार्ट. आया समझ में? आया समझ में तीनों को? कोई डाउट है? अभी पूछ लो मैपिंग में. हाँ, लेबनान ऊपर है. और कुछ पूछना है इसके अंदर? कोई भी कंट्री चेक कर लो एक बार तीनों. just check any country you cannot get. समझ पा रहे हो मिडिल ईस्ट कहाँ पर है पूरे एंटायर ग्लोब में? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, रेड सी. अब बस ये ध्यान रखना, दिस इज योर रेड सी. और यहाँ पे आके इट विल मीट. अब जो वी टॉक अबाउट स्विज ऑफ कैनाल, वेयर दिस स्विज कैनाल, यहाँ पे जाएंगे एंड हियर यू हैव बहुत छोटा सा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आया समझ में आप तीनों को? आप आ जाइए. यस, आपको नहीं दिखेगा, आप इधर आ जाइए. आप कर लोगे? पढ़ा है? ठीक है, ओके. कैन यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? दिस इज योर, ये क्या बोलोगे आप इसको? मिडिल ईस्ट. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेनिनसुला. अब इसके अंदर क्या सबसे बड़ा क्या है? या सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज द बिगेस्ट, हैविंग अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ इट. दिस इज योर येमेन. दिस इज योर ओमान. सऊदी, देन इराक, दिस इज सीरिया, जॉर्डन. जॉर्डन कहाँ पर है? यहाँ पे इजराइल, राइट? बीच में है आपका वैसे डेड सी. हैव यू हर्ड ऑफ डेड सी? जॉर्डन और इजराइल के बिल्कुल बीच में है. ठीक है. नाउ दिस इज योर इराक, सऊदी के जस्ट ऊपर. पता चल रहा है आपको? सऊदी के जस्ट ऊपर. हियर येमेन, ओमान. दिस इज योर यूएई. यूएई. एंड हियर इट्स योर कतर. नाउ इसके ऊपर बहरीन. देन सीरिया हो गया आपका. और कुछ बचा है इसके अंदर? दिस इज योर इराक. अब यहाँ पे देखेंगे बाकी चीजें. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर अरेबियन सी. अरेबियन सी से द शिप इज गोइंग. इसके ऊपर जो होगा, दिस इज योर गल्फ ऑफ ओमान. वे इज ओमान? पॉइंट करो. ओमान यहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर होगा? गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर होगा? हाँ, यहाँ पे होगा ना. ओमान यहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा. देन व्हाट विल हैपन हियर? गल्फ ऑफ, दिस इज योर पर्शियन गल्फ. ऊपर है पर्शियन गल्फ. दिस इज योर पर्शियन गल्फ. देन
दिस इज योर अरेबियन सी, जो किसके पास है आपका, वेस्ट कोस्ट साइड ऑफ इंडिया। देन वहां से आप आ रहे हो, दिस इज योर गल्फ ऑफ एडन। अब गल्फ ऑफ एडन से पास होते हुए यहाँ पे कहाँ जाओगे आप, रेड सी, रेड सी, दिस इज योर रेड सी। और रेड सी इंपॉर्टेंट है क्यों, फॉर योर ट्रेड पर्पस, यहाँ पे ट्रेड पर्पस के लिए। एंड देन यू विल हैव स्विज ऑफ, योर स्विज कैनाल विल बी हियर, यहाँ से आप मिल जाएंगे मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे आप यूरोप को ट्रांसफर कर, यू कैन ट्रांसपोर्ट ऑल द गुड्स, ठीक है। एंड देन इसके के नीचे यहाँ पे क्या है, ये कनेक्टेड, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, दिस इज कनेक्टेड टू योर इजिप्ट। यहाँ से आपका नीचे से स्टार्ट हो जाएगा क्या, अफ्रीका। कितनी चीजें मैंने आपको करवाई थी उस दिन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी कराया था गौतम, बताइए कौन कौन सी चीजें। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहाँ है, ये देखो पर्शियन गल्फ था ऊपर, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर है, ईरान और यहाँ पे यूएई के बीच में ये जो आपका, दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लैंड, यहाँ पे यू हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है। अब कंट्रीज है कि मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, कितना कितना आपको क्लैरिटी मिला है अभी, मिला पहले से आपको आपको आपको, ठीक है डन। जिसके लिए पूरा एक्टिविटी किया है, नहीं नहीं अब नहीं आपको, आप भी इधर देख लीजिए प्लीज, हाँ ठीक है। यू, मैं आपका नेम बोला, प्रिया राइट, हाँ एक बार देख लीजिए। सो दिस इज योर सऊदी अरेबिया, ठीक है। मिडिल ईस्ट में कहाँ पर है पता चल गया ना आपको, कहाँ पर है, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ ना, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है भूमिका, क्योंकि आपको मैप समझ में नहीं आता, इधर देख लो, ठीक है, या फिर आपके लिए अलग कर दूंगी, कोई बात नहीं, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो दिस इज योर सऊदी अरेबिया। अब यहाँ से इंडिया से यू आर कमिंग हियर, दिस इज योर गल्फ ऑफ ओमान। पहले ये देखो कि कौन कौन सी कंट्रीज है, कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है, बताओ। दिस इज सऊदी अरेबिया, जस्ट उसके नीचे येमेन, देन ओमान, देन यूएई, देन दिस इज योर कतर, वेरी गुड। जस्ट ऊपर छोटा सा क्या है, बहरीन, ठीक है, बहुत छोटा सा। देन कुवैत, हाँ ठीक है, देन वेयर कुवैत इज हियर, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कुवैत, एयरलिफ्ट मूवी देखी है ना, ठीक है, कुवैत। देन इराक, कुवैत और इराक में ही हुआ था वो जो पूरी मूवी है एयरलिफ्ट, ठीक है। अब हाँ, तो ये ध्यान रखना कि कहाँ पर है इराक, जस्ट अबाउट दैट। दिस इज योर सीरिया, जहाँ पे पूरा टर्मोइल हुआ है, कौन सा, योर वेस्टर्न, योर ऑल दैट हैज हैपेंड, द इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे। व्हाट एल्स, अब लेबनान क्या है, जस्ट उसके ये रहा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, इजराइल। अब इजराइल को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस हैज बिकम अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा अभी इश्यूज हो रहे हैं। इजराइल के जस्ट ऊपर क्या है, ऊपर नहीं है, साइड में, साइड में, ठीक है, साइड में है, साइड में, जस्ट राइट टू इट, जॉर्डन है, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब जॉर्डन के बिल्कुल बीच में क्या है आपका, नो, अकाबा, राइट, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। अब इतना डिटेल में मत जाओ। अब ये देखो, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, किसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखो, यूएई और ओमान, ठीक है, ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यूएई, आप देख रहे हो, दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यूएई। अब यूएई का एक्सटेंडेड वर्जन ऊपर से यहाँ पे ईरान, बीच में क्या है आपका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे देखिए एवरीवन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज हियर, देन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर पर्शियन गल्फ, दिस इज योर पर्शियन गल्फ। अब आपको पर्शियन, आंख बंद करके सोचो कि कहाँ पर होगा पर्शियन गल्फ, ऊपर साइड होगा या नीचे की, यहाँ पे इस साइड होगा, ऑलवेज रिमेम्बर इट इज यहाँ पे पर्शियन। पर्शियन मीन्स व्हाट, ये बताओ मुझे, पर्शिया किसको बोलते थे, करेक्ट, ईरान कहाँ पर है, ऊपर, तो पर्शियन गल्फ कहाँ होगी, आया समझ में आप कि पर्शियन गल्फ कहाँ पे होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। So how much you got it? Our Arabian Sea, you are coming from here. Now this is your Gulf of Aden, ठीक है।
यहाँ पे आए आप, then you will come here and then you will go to, this is your Red Sea. अब रेड सी कनेक्ट करेगा मेडिटेरियन सी को कहाँ पे, स्विस कैनाल से, दिस इज योर स्विस कैनाल। यहाँ पे आप फिर जाएंगे, ट्रेड करेंगे यूरोपियन कंट्री से सब जगह, ठीक है। दिस इज योर रेड सी, दिस इज योर अरेबियन सी। ये है आपका बाबल मंडप स्टेट, बाबल मंडप स्टेट दिख रहा है, दिस बाबल मंडप स्टेट इज इरिट्रिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। हाँ, it's a part of Africa, it's a country of Africa. Now this is your part, ये आपका क्या है, दिस इज योर अफ्रीका। यहाँ पे क्या है जो इससे कनेक्ट हो रहा है, इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट। कितना समझ आया, आया समझ में, ठीक है। आपको आया पक्का, चलिए। किसका है पेन, किसका है, ठीक है। अब बनाओ, मैप बनाओ ठीक है, डन, डन। कितना क्लैरिटी मिला 20 मिनट्स पहले और अब तक में, कितना क्लैरिटी है? ऐसे मत बोलना प्लीज, बी ऑनेस्ट। जैसे यू, आई लाइक यू वर ऑनेस्ट टुडे, आई रियली लाइक्ड इट, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। और कोई जिनको सच में समझ में नहीं आया है मैप, क्योंकि पूरा एंटायर फिर आईआर समझ में नहीं आएगा मिडिल ईस्ट वाला, कोई है ऐसा जिसको? अभी आई एम रेडी टू टेल यू 100 टाइम्स, बट आई नीड टू नो इट। उनको इतना ज्यादा समझ में आ गया कि ही एक बार और समझो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। हाँ, कल कोई क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन और आपका भूमिका बताओ, पूछो पूछो। गल्फ इज अ कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा आपने? स्ट्रेट क्या होता है और गल्फ क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ोगी, ठीक है कर लिए मैंने बात, ठीक है। हाँ, but they still have to decide, you never know, ठीक है। So in that you will understand. हाँ, अभी ऐसे समझ, ठीक है। एक सीन दिखाना, एक बार ना जरा मैप देखिए आप, just look at it and after 2 minutes I'll explain you this, ठीक है। प्रॉब्लम विद दिस इज कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा ना, दैट दिस इज अफ्रीका, जो ये वाला पार्ट है ना, ये अफ्रीका है, ये वाला, दिस इज योर अफ्रीका, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे भाई, पर्शियन गल्फ, क्विकली, ईरान के नीचे, सक्षम, लुक हियर, दिस इज योर पर्शियन गल्फ, पर्शिया मीन्स ईरान, ठीक है, इसे याद करेंगे। तो पर्शियन गल्फ कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। वेयर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ होना चाहिए, ईरान और एक्सीलेंट यूएई की एक्सटेंशन यहाँ पे, ठीक है। विच कंट्री इज दिस, एक्सीलेंट ओमान, दिस इज येमेन, दिस इज सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पे कौन सी कंट्री है,
यहाँ पे बहरीन, यहाँ पे नो, सीरिया क्यों नहीं है? यहाँ कुवैत है। हाँ, लेकिन कुवैत के इराक, क्योंकि कैसे याद रखोगे कि कुवैत के ऊपर इराक है? बिकॉज यू हैव सीन ऑल, एवरीबॉडी हैज सीन एयरलिफ्ट। वो पूरा सिनेरियो क्या था, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, ये कुवैत, उसके ऊपर इराक। अब इसके ऊपर क्या है? सीरिया। या तो लेबनान का है ऊपर है या नीचे है? सीरिया की मिडिल से थोड़ा नीचे, तो इराक के ऊपर क्या है? सीरिया। ठीक है, और बताइए अब लेबनान कहाँ पर है? और कुछ रह गया आपका? इजराइल। कहाँ पर है? इसके ऊपर होगा, देखो यहाँ पर होगा। ये दिख नहीं रहा ना, मैप का प्रॉब्लम आ गया। एक सेकंड, यहाँ पे समझ आएगा। अब बताओ, यहाँ पे ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है आपका, यहाँ से कनेक्ट नहीं होता, यहाँ से स्विस कैनाल है। You go to European countries from here, right, for the trade etc. Now this is connected. ये इजिप्ट का क्या है? यहाँ पे there is a Sinai Peninsula, इससे connected, and this is your इजराइल। इजराइल बिल्कुल क्या है? बॉर्डर पे है, किसके? मेडिटेरियन सी के। ठीक है, दिस इज योर मेडिटेरियन सी ओनली ना, राइट। लैंडलॉक कंट्री इसके बराबर में कौन सी? जॉर्डन। जॉर्डन है लैंडलॉक। सारी कंट्रीज हो गई है। वापस आते हैं अब इसके ऊपर, फिर से करेंगे। पर्शियन गल्फ, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये। ठीक है, अब मुझे बताइए दैट वेयर इज योर रेड सी, ये वाला। ठीक है, अब मुझे इसको वहां तक जाने के लिए कौन से स्टेट से पास होना पड़ेगा? वेरी गुड, गल्फ ऑफ एडन एंड बाबल मंडल स्टेट। एक्सीलेंट। और फिर यहाँ से जाके दिस इज, ये कोई मुझे बता दी क्या है तो? वेरी गुड, सिनाई पेनिनसुला। दिस इज योर स्विस कैनाल एंड दिस इज सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है? वेरी गुड। और क्या रह गया? वो तो हमने और भी कुछ किया था ना पिछले क्लास में, मतलब बहुत सारे टर्म्स लिखे थे। देखो कौन कौन से टर्म्स थे, कोई मिस हो रहा है क्या? बताओ राशि। हाँ, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पे? रेड सी के गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। देखिए कौन सी डिग्री पे आपको समझ आया सक्षम? अब हाँ बताइए। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहे हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट टू बी नोटिस कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ पाएंगे पूरा सिनेरियो।
अब मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया है उसके अंदर, जस्ट कैन यू रीड लास्ट पैरा विच यू हैव जस्ट रिटन, क्या लिखा है आपने उसमें? construction of Chahar as well as international north-south transport corridor. Iran is poised to become India's gateway to Central Asia, Europe, Russia. Okay, so India, this is north-south corridor. What is this north-south corridor? North-south transport, हाँ, तो हम ये बना रहे हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द कनेक्टिविटी, इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी एंड द ट्रेड. कनेक्टिविटी क्यों बना रहे हैं हम? ट्रेड के लिए. तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? जो चाबार पोर्ट, वे इज चाबार पोर्ट, तो किसमें है? ईरान में, करेक्ट. एंड देन दे आर कनेक्टेड टू व्हाट? यस, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ट्रांसपोर्ट मतलब आपको ट्रांसपोर्ट करना है फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, इट इज इम्पोर्टेंट. So this is also becoming an important place. क्यों important place है? Because अगर आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट शिपमेंट या फिर बिल्डिंग करनी है या फिर कुछ भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो दिस जो पैसेज तो इम्पोर्टेंट है ना. पैसेज के बिना कैसे कर लेंगे आप? ये पैसेज इम्पोर्टेंट, आई टोल्ड यू, बिकॉज मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट इज गोइंग फ्रॉम दिस एरिया. दिस पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज जियो स्ट्रेटेजिक. और यहाँ पे कुछ भी चेंज हो जाता है. हाँ बताइए, क्योंकि इसका नाम ऐसे ही रखा है उन्होंने. ठीक है, हाँ, गेटिंग द पॉइंट. और क्या लिखा है मैंने इसमें? लिखा है फॉर एग्जाम्पल थर्ड विद द इवेंचुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स ऑफ चाबार एंड as well as international north-south transport corridor, Iran is poised to become India's gateway to Central Asia. अब मुझे, if I have to go to Central Asia, will I go take help of this Gwadar? I cannot take, for different reasons. You know that very well. ठीक है, so अब how I have to go? I have to take this Java and then they are well connected. यहाँ पे भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना आपको. पोर्ट पे जाने के बाद कैसे जाओगे आगे? यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, railways, right? Railways, roads, etc., and then it will be connected, and it's a very important passage for India to go to Central Asia. Central Asia, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan और उस साइड है, हाँ, अफगानिस्तान, करेक्ट. तो सेंट्रल एशिया जाने के लिए इंपॉर्टेंट है. आया समझ में? तो एरिया तो यही जाएगा. कौन सा एरिया है ये? पर्शियन गल्फ हो गया इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब ईरान से दे यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ ऑयल, but after USA has they imposed a sanction on Iran, they were not able to take the oil from Iran after that. ठीक है, अब लिखेंगे after September 11, after September 11, 2001, 2001, comma, the GCC countries, GCC, write down, I will tell you the full form. GCC countries have come to occupy, GCC का फुल फॉर्म लिखेंगे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ब्रैकेट में लिखिए गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, GCC. Your GCC countries have emerged as, countries have come to occupy and
increasingly and increasingly crucial political space. Crucial political space in Indian strategic thinking. In Indian strategic thinking. Full stop. Half of India's crude oil, half of India's crude oil and 85% of its and 85% of its natural gas comes from Arab states. Write down the data. In 2016, in 2016, comma, bilateral trade. Bilateral trade. This is a group of the countries, GCC. उन्होंने क्या बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया कि हम क्या है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल. अब जब मैं आपके साथ ट्रेड कर रही हूँ जीसीसी के साथ, मतलब वो सब पे क्या होंगे, इम्पोज होंगे या इम्प्लाई होंगे. दैट इज द राइट वर्ड, इम्प्लाई, नॉट इम्पोज. इट विल बी इम्प्लाइड ऑन ऑल द कंट्रीज बिकॉज दे आर द ग्रुप. And I have decided something with a group of the countries, and you are a part of the group. Then what implied to one country will also imply to another. So this is a kind of bilateral. जब हम EU और इंडिया की बात करते हैं तो वो bilateral relation है. हालांकि EU में बहुत सारी countries हैं, right? But this is a bilateral that we are talking about. GCC में कितनी countries हैं? I'll let you know. पहले आप लिख लीजिए. In 2016, bilateral trade with GCC countries with GCC countries was $150 billion. Was $150 billion. Was $150 billion. With United Arab Emirates and Saudi Arabia. अब इमेजिन कर पा रहे हैं कि कहाँ पे है कंट्रीज, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. जैसे ही मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलूँ, आपका इमेजिनेशन शुड गो टू दैट प्लेस. अकाउंटिंग फॉर $60 billion, United Arab Emirates and Saudi Arabia accounting for $60 billion and $39 billion and $39 billion. Next point, remittances. कितने लोगों को remittances समझ में आता है? Everyone understand remittance? नहीं? See, if you are going out, for example, you are an Indian, somebody is going out and working there and sending back the money, that is called remittance to their own nation. So that is called remittance. ठीक है? Now write down. Furthermore, remittances, remittances, remittances from GCC countries, was 7 to it was equivalent to $30 billion. Write down $30 billion. Was almost to $30 billion. अब इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है दिस एरिया? बिकॉज दे परचेज आवर फूड,
right? So they are import dependent हैं वो लोग हम पे, right? So we are also trading with them. So write down. India sees a great convergence of India sees a great convergence of interest. India sees a great convergence of interest with the Gulf Arab countries. With the Gulf Arab countries. Write down. GCC nations purchase 60%. GCC countries purchase 60% of food commodities from India and 80% of their rice, food energy security is one of the more areas of convergence. क्यों they are 60%? They are highly dependent on the food from other countries. Very good. Deserts are there. They are not. The soil is not that fertile, so you will never see a Habibi growing and cultivating the crops. You find all of them in jaguars, or I don't know other name. What is that? No, that other one. The big one. That which part? No, not that. I'll let you know. Correct. So you will find all of them in that. Okay. So you will never find them doing this farming, etc. And the way they have made the infrastructure so well that the tourism gets attracted to them, and like tourists are going there only, whether you are Europeans, Americans, or Indians, they are trying to buy land. They have a very good this real estate business, by the way, right? Everyone is making that because they even know that they have to pivot from that area. If they will not pivot, what will happen in that case? Because they also know that the reserves that they are having is not going to last for long. Kitna time tak rahenge, right? So they were very smart to do that. That they pivoted long back, and they started making their infrastructure in such a way that the people should, and they are promoting that. Even your football matches, your all recently that cricket match happened in Dubai only, that recent one, जिसमें हम जीते हैं, right? Asia Cup, right? So this is what. So अगर आप you will attract people for your infrastructure. That is also one of the a big source of revenue for the country, right? Hmm. 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 Correct. करेक्ट. तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है उनका, वहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट इफ यू गो टू दुबई यू विल ऑलवेज फील लाइक not enough. No, you'll not feel like that. Even if you'll feel like you'll get maybe what do you call inferior, right? That is the right word, inferior. Oh my god, यहाँ पे ये भी है, ये भी. And people, you can never see anyone who is like थोड़ा सा mediocre भी. Everyone is full of पूरा, yes, they believe in that. And having tigers and lions in their home, that is not I heard one story that there was a bird which lay their egg in the Mercedes of one of the this, I don't know if whether it's true or not,
हाँ, of prince, and what he did, he just left that car for that bird. Just sleep here, whatever. You can just have your own time here. You can, I'll not take that. So, हाँ, लेकिन ज्यादा प्राइसेस में डिफरेंस है नहीं, सेम है, ज्यादा प्राइसेस में डिफरेंस नहीं है. हाँ हाँ, इत्र के लिए बहुत, हाँ आता है यहाँ पे भी आपको, यू कैन गेट, हाँ राइट, you can get all the perfumes here in Delhi also, and they'll market it like that only. So this is either from Dubai, this is either from this place, Qatar. हाँ, पूरा टैक्स फ्री है. लेकिन आपका अगर यहाँ पे मनी आएगा, देन इट विल कैपिटल गेन, यू विल गेट कैपिटल गेन, पूरा आपका होगा. इतना भी नहीं है, थोड़ा सा अपनी टैक्स फ्री है ना, तो वो तो लगता नहीं है ज्यादा आपका. अच्छा, कितना, हाउ मच प्राइस डिफरेंस? मतलब if one is for example costing 10K, अच्छा इतना फर्क आ जाता है, टू मच, हाफ हो गया बिल्कुल. करेक्ट. हाँ हाँ, ये भी क्वेश्चन है कि सब कैन वी बाय इट और नॉट. एक कुछ कंजम्पशन लेवल तक आप ला सकते हो फॉर योर पर्सनल यूज. ऐसा नहीं आप बल्क में ला रहे हैं, देन एवरीबॉडी विल बिकम रिच एंड दे विल गो टू दैट प्लेस ओनली. हाँ, यू कैन वियर इट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप कितना वियर कर लोगे आप. यू कांट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पहन सकते ना. करेक्ट, हाँ, दे चेक एवरीथिंग, पूरा आपको चेक करते हैं. हाँ, इसको स्मगलिंग, करेक्ट करेक्ट, स्मगलिंग बोलते हैं. एंड देन दैट्स व्हाई यू हैव रेवेन्यू ऑफिसर्स प्रेजेंट देयर. आपका जो IRS, हाँ, GCC कंट्री से ऊपर, करेक्ट. हाँ, इसमें लेकिन कंट्रीज है, ठीक है ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. So tomorrow we'll start with Indian policy for West Asia. ठीक है, because only 2 minutes are left, so I don't want to start a new topic. How many of you understood actually कि वेस्ट, अब पूरा एटलीस्ट मिडिल ईस्ट आपको समझ में आया कि क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑयल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा क्या डिपेंडेंसी है ऑयल, नेचुरल गैस, हमारे रिलेशंस कैसे थे पहले. वी वर नॉट, वी आर हैविंग अ डिस्टेंस, पॉलिटिकल डिस्टेंस, मैंने वर्ड यूज करा है विद देम. क्यों पॉलिटिकल डिस्टेंस? क्योंकि हमारा वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं था. जब से वेस्टर्न इंटरेस्ट आया, फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड टेकिंग ऑयल्स, नेचुरल गैस, देन दे आल्सो रियलाइज दिस इज अ पोटेंशियल पार्टनर, विच कैन बिकम अ पोटेंशियल पार्टनर. इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फूड एक्सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है. हाँ, फार्मास्यूटिकल्स, वीट एक्सपोर्ट होता है, या फिर कोई आपके फूड प्रोडक्ट्स, ऑल दिस आर एक्सपोर्टिंग दैट प्लेस. तो दोनों के लिए क्या है, विन विन सिचुएशन. देन व्हाट एल्स, रेमिटेंसेस आर कमिंग. Apart from that, what else? This is an important geostrategic, geopolitical place. Reason being because of the trade routes present here. ठीक है, कोई और डाउट? 10 मिनट्स का ब्रेक नहीं मिलेगा, क्वेश्चन लिखो. हाँ, मैंने पिछली बार एक एक्टिविटी कराई थी ना, 8 मिनट्स की, आपका आंसर लिखवाया था ना. कौन कौन था उस दिन क्लास में? आप थे? मंडे को ही कराया मैंने. नहीं, मैंने अब टास्क दिया है कि यू हैव टू राइट एंड 8 मिनट्स के अंदर आंसर लिखना है, 7 मिनट्स में. क्या नहीं लिखना? अच्छा, करो. इसके बाद आपको कोई क्लास नहीं मेरे से? अच्छा अच्छा, हाँ श्योर श्योर. विच ऑप्शन हैव यू ऑप्टेड? PSI कहाँ से ले रही हो? हाजी राम. प्लूटस में बहुत अच्छा है, हाँ सच में. We have great faculty here. विजेंद्र सर बहुत अच्छा.
तो फिर यहाँ पे फिर आप ये भी कर रहे हो, दोनों कर रहे हो। क्वेश्चन लिखिए, 8 मिनट्स में कंप्लीट करना है आपको। हाँ, डेली होगा ये एक्टिविटी। मैं नहीं लिखूंगी, यू हैव टू राइट, आई विल नॉट राइट। हाँ, ऐसे तो आप प्रिपेयर करके आओगे, ऑन द स्पॉट है क्वेश्चन। चलो ठीक, वो तो कभी नहीं हो पाओगे आप। थैंक यू।